Hello students, so this is the session for quadratic equation. We are going to solve the most important questions of quadratic equation in the upcoming JEE Mains session, right? So let's begin the session. So we have question 1 here as, if the roots of quadratic equation b minus c x square plus c minus ax plus a minus b equals to 0 are equal, it means the roots of quadratic equations are equal, then a, b, c are in what, right? Now if you look at the quadratic expression, b minus c x square plus c minus a into x plus a minus b, right? Now if you put x equals to 1 here, you will get to know that this will become b minus c plus c minus a plus a minus b. Now this is 0, this whole will get cancelled out and 0 equals to 0. It means x barabar 1 satisfy the equation, which finally means that x equals to 1 is one root, right? Now the question says that the roots are equal, so both roots are what? Both roots are 1 and 1, right? Now what is product of roots? If you see, product of roots is what? Alpha into beta is c by a. So alpha is 1, beta is 1. What is c? C is a minus b, and what is a? That is b minus c. It means a minus b is equals to b minus c. It means twice of b is equals to a plus c. It means b is equals to a plus c by 2, and which is ultimately the condition for AP, right? ABC are in AP. Clear? So this is the condition for ABC are in AP, that is twice of b is equals to a plus c. So the answer of the first question is option A. Now let's move to the second question. Now second question says, if roots of bx square, this is b, bx square plus cx plus a equals to 0 be imaginary, right? The roots of this equation is imaginary. So first of all, let's rewrite the equation, bx square plus cx plus a equals to 0. Now if roots are imaginary, it means t must be less than 0, clearly, right? तो ये सब हमने अपने क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रखा है कि रूट्स जब इमेजिनरी हो तो d क्या करना है, d हमें लेस देन 0 लेना है. d क्या होता है? b square minus 4ac, that would be must be less than 0. Now in place of b I have c, so this is c square minus 4. In place of a we have b, in place of c we have a. It means c square is less than 4ab, right? C square is less than 4ab. Now let it equation 1. Now we need to find the values of this expression, 3b square x square plus 6b cx plus 2c square. So we have 3b square x square plus 6bcx plus 2c square, and we need to find the value of this expression. Now if you see the coefficient of x square, this is what? This is 3b square. Now what can I tell about this? I can clearly tell that 3 is positive, b square is also positive, so this expression is greater than 0. So the coefficient of x square is greater than 0. Now it means the parabola, the graph of this quadratic expression will be in upward direction, right? Will be in upward direction. Now let's calculate its minimum value, right? What I had said, let's calculate its minimum value. So what is the minimum value? The minimum value of quadratic equation will be, right, the value here is minus ka b by 2a and minus ka d by 4a, right? So first of all we need to find d, that is b square, 36 b square c square minus 4ac, 4 3s are 12 into 2 24 b square c square, this will be 12 b square c square, right? Now we need to divide it by 4a, we need to divide it by 4a, that is 12 b square, and this minus term, because the value of this quadratic expression is minus d by 4a. ये तो हम पढ़ाते ही हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी हमें मिनिमम वैल्यू किस पे मिलती है? माइनस बी बाय 2a पे, और वैल्यू क्या होती है उसकी? माइनस का d बाय 4a. तो 12b स्क्वायर से 12b स्क्वायर कट गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? माइनस का c स्क्वायर आएगा. मतलब ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का c स्क्वायर. तो c स्क्वायर जो है वो छोटा है 4ab से, तो माइनस का c स्क्वायर क्या होगा? बड़ा होगा माइनस के 4ab से, है ना? दोनों तरफ में माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे. और ये वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन माइनस 4ab. सो सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन माइनस 4ab. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? चलो तीसरे पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है?
लेट ए बी सी बी थ्री डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर, ये नॉन जीरो रियल नंबर है, सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये कुछ इक्वेशन हमें दी गई है, ये आप देख सकते हैं। इन तीनों में एक चीज हमें कॉमन दिखाई दे रही है कि ए बी और सी दिख रहे हैं, तो अगर इनके जगह पे मैं एक्स रख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे बना सकता हूं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एलसीएम लूं, तो ये एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस टू, और यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वन, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, फिर हमें यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फिर हमें यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड दिस इज फाइनली इक्वल टू एक्स, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक, इसको थोड़ा सा हम अगर और सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास थ्री एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड पे, और x के कितने कितने टर्म्स है, माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स, तो माइनस सिक्स एक्स है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास है दो भी दिखाई हमें दे रहा है, तो दो है। ठीक है, बराबर में मेरे पास एक एक्स क्यूब की टर्म है यहाँ पर, है ना, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस क्या है अपने पास, प्लस टू एक्स। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू, ये वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है, राइट। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। क्लियर, चलो तो इसको हम कैसे सॉल्व करें अब आगे। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके तीन रूट्स होंगे। तीन रूट्स क्या कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी सी। पर ए बी सी कैसे हो गए इसके रूट्स, क्योंकि देखो ना ये इक्वेशन हमने यहाँ से ड्राइव की है और ए बी सी इसको सेटिस्फाई कर रहा था अकॉर्डिंग टू दिस, ए बी सी सेटिस्फाइंग दिस, तो तीन इक्वेशन क्या हो गई, तीन रूट्स क्या हो गए, ए बी सी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ए बी सी, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाय ए, सी बाय ए, माइनस का डी बाय ए, यानी ये होगा माइनस का माइनस टू और ए वन है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ए बी सी की वैल्यू आ गई टू। ठीक, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई टू। सो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो चौथे पे आते हैं। चौथा क्या कहता है हमसे, चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है इक्वेशन a प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री एक्स प्लस टू ए माइनस वन, जहां पर a माइनस दो नहीं हो सकता, हैज रैशनल रूट्स। कैसे रूट्स हैं यहाँ पर, रैशनल रूट्स। तो अगर यहाँ पे ध्यान से एक बार दोबारा लिख लेते हैं हम अपने इक्वेशन को, a प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री एक्स बराबर टू ए माइनस वन। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से लिखूं तो x को अगर मैं वन रख लूं, x को वन रख लेते हैं, तो a प्लस टू प्लस ए माइनस थ्री, और ये इधर राइट हैंड साइड पे टू ए माइनस वन है, तो यहाँ पे देखोगे तो टू ए माइनस वन बराबर टू ए माइनस वन, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो x बराबर वन क्या है, x बराबर वन सर इसका एक रूट है। अगर x बराबर वन इसका एक रूट होगा तो दूसरा रूट क्या निकालें, दूसरा रूट देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए इस इक्वेशन में, प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो, तो इस इक्वेशन में मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूं, दोबारा इक्वेशन को लिख लेते हैं, a प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस का टू ए माइनस वन, प्रोडक्ट ऑफ रूट वन इंटू बीटा, क्योंकि एक रूट तो वन है, एक रूट हमें और चाहिए, तो ये होगा सी बाय ए, सी की वैल्यू क्या है, माइनस का टू ए माइनस वन बाय ए प्लस टू। तो दूसरा रूट की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं डी, डी निकालने की कोशिश करते हैं। तो d हमारे पास क्या हो जाएगा, d आएगा मेरे पास बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट इज फोर ए प्लस टू इंटू माइनस का टू ए माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा टू ए माइनस वन, है ना। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं d को, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स ए प्लस फोर, ये आ जाएगा टू ए स्क्वायर और ये माइनस ए प्लस फोर ए, तो प्लस थ्री है ना, और दिस विल बी माइनस टू, तो ये हो गया।
तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू मेरे पास आ गई ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस 8a स्क्वायर प्लस 12a -8 तो ये आ गया मेरे पास 9a स्क्वायर प्लस 6a और प्लस 1। इसको ध्यान से देखें तो ये होता है 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी जो d है वो d कैसा आया, d परफेक्ट स्क्वायर आया। सर d कैसा आया, d परफेक्ट स्क्वायर आया। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के रूट्स तो रैशनल होंगे ही, इसको तो कोई रुक ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जब इसका d निकाला तो d परफेक्ट स्क्वायर आया, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रैशनल। रूट्स आर ऑलवेज रैशनल। और एक रूट क्या निकला हमारा, एक रूट तो सर निकला 1, वो तो देखते ही पता चल गया था। और दूसरा रूट क्या निकला, दूसरा रूट हमारा निकला, दूसरा रूट यहां लिख लेते हैं। दूसरा जो हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी वो आई थी 1 - 2a बाय a + 2। और अगर इसको रैशनल होना है तो a क्या नहीं हो सकता, a - 2 नहीं हो सकता। तो इसको छोड़ के बाकी आप a कुछ भी रख लो, तो ऑल रैशनल वैल्यूज x ऑफ a एक्सेप्ट a इक्वल्स टू -2, ये नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर, चलें आगे, आ जाओ 5वें सवाल पे चलते हैं। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 बराबर 0। ए एन क्या है मेरे पास, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, देन वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू पूछी है। तो हमारे पास एक इक्वेशन हमें दे रखी है शायद, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 बराबर 0। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स पूछूं तो माइनस का b बाई यानी कि 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछूं तो माइनस का c बाई यानी कि माइनस का 7। ठीक है, अब हम यहाँ पर a की पावर 2021 अगर मैं लिखूं, a 2021 यहाँ रख रहा हूं मैं, तो अल्फा की पावर 2021 माइनस बीटा की पावर 2021, है ना। यानी ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रखना शुरू करता हूँ, करें शुरू। तो ये आएगा अल्फा की पावर 2021 माइनस बीटा की पावर 2021 माइनस 2। अब यहाँ पे अल्फा की पावर 2020 माइनस बीटा की पावर 2020 प्लस अल्फा की पावर 2019 माइनस बीटा की पावर 2019, और पूरे के डिवाइड में a 2019 यानी अल्फा की पावर 2019 माइनस बीटा की पावर 2019। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसमें क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या करेंगे, चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अल्फा की 2021 माइनस 2 अल्फा की 2020 प्लस नहीं माइनस का 2 अल्फा की 2019, है ना। मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे माइनस का बीटा की 2021 प्लस 2 बीटा की 2020 प्लस 2 बीटा की 2019, और पूरे के डिवाइड में है हमारे पास अल्फा की 2019 माइनस बीटा की 2019। अब यहाँ पर मैं अगर कॉमन लेना चाहूँ तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। अल्फा की 2019 आप कॉमन ले लो, अल्फा की 2019 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बीटा की 29 माइनस में कॉमन लूँ तो माइनस में बीटा की 2019, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2, ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 2। और यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया इसको किससे, अल्फा की 2019 माइनस बीटा की 2019 से। अच्छा, अब यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, होगी कि नहीं होगी। और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 7, तो वो रख देते हैं यहाँ पे। इतने की वैल्यू आ गई 7, 7 माइनस 2 5, तो अल्फा की 2019 यहाँ पे आ गया 5 माइनस बीटा की 2019, ये भी कितना आ गया 7 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाय अल्फा की 2019 माइनस बीटा की 2019, 5 कॉमन है, तो अल्फा की 2019 माइनस बीटा की 2019 डिवाइडेड बाय अल्फा की 2019 माइनस, और ये पूरा सॉल्व
और हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। तो इसका आंसर क्या आना था, इसका आंसर आना था 5। क्लियर। छठे सवाल पे आते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एन बराबर 0, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है और बिलोंग कर रहा है किसको, 5 से 100। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। कैसे रूट्स होने चाहिए बच्चों, इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एन बराबर 0। अब अगर मैं यहाँ पे बाबा मेथड लगा के x निकालने की कोशिश करूं तो ये आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी कि प्लस 4n और डिवाइडेड बाय 2a। तो x अगर मैं सॉल्व करूं तो -1 प्लस माइनस 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ये आएगा रूट में n+1, रूट में n+1। अब इंटीग्रल रूट्स के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर इसको होना पड़ेगा। और n की स्टार्टिंग कहां से करनी है, 5 से, मतलब कि हम यहाँ पे 5 से वैल्यू रखना शुरू कर सकते हैं। तो 5 से अगर हम वैल्यू रखना शुरू करें, मतलब n अगर हमारे पास 5 से 100 के बीच में है तो n+1 हम कहां से कहां तक रख सकते हैं, 6 से 101 के बीच में। और इसमें ये वैल्यू कौन कौन सी सेटिस्फाई करेगा, ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा 8, 8 के बाद करेगा 15, है ना, 15 करेगा ना, क्योंकि ये वैल्यू इसमें डालोगे, n की वैल्यू इसमें डालोगे, n की वैल्यू कितनी डालोगे, 8 डालोगे तो 9 हो जाएगा। तो मतलब एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू n+1 के फॉर्मेट में क्या क्या आ सकती है, कितने मतलब स्क्वायर रूट हमारे यहाँ पे बन सकते हैं सॉल्व होने वाले, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद 100, ये चलेगा हमारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितनी वैल्यूज n की यहाँ पे डल सकती है फॉर इंटीग्रल रूट्स, दैट इज 8। सो 8 वैल्यू ऑफ n आर देयर। सो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आसान था, बहुत इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। सातवें पे आते हैं। सातवां सवाल क्या कहता है हमसे, सातवां सवाल हमसे कह रहा है कि इफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0 हैव अ नॉन जीरो कॉमन रूट, मतलब कॉमन रूट तो है लेकिन नॉन जीरो है, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है। तो देखो सिंपल सा है, इस तरीके के सवाल हम सॉल्व करना बताते हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो आपस में। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे नहीं है तो इसको 2 से कर लो, तो ये होगा 2x स्क्वायर 4x प्लस 6 लैम्डा, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा, यहाँ पे रख दो, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा। इट मीन्स लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, लैम्डा की वैल्यू 0 और -1। इसने बोला था नॉन जीरो कॉमन रूट, तो 0 तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी -1। सही आंसर क्या है, सही आंसर है -1। इजी, बहुत इजी है ना। 8वें पे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस एक्स प्लस 9 इज स्ट्रिक्टली अबव x एक्सिस। जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली x एक्सिस के अबव है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इस ग्राफ की कंडीशन होती है कि a 0 होता है और d लेस देन 0 होता है। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखे तो वो तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ ही है, तो हमें d लेस देन 0 करना है। हमें क्या करना है, हमें d लेस देन 0 करना है। तो अगर हम d लेस देन 0 करते हैं तो d क्या है यहाँ पर मेरे पास, थोड़ा सा इक्वेशन को सही कर लेता हूँ मैं। y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, k माइनस 1 प्लस 9, तो d आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 9। सो k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 36 लेस देन 0, है ना। इसका मतलब k माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 36। दोनों तरफ अगर मैं मॉड काटूं तो k माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -6 से +6 तक। 1 अगर मैं ऐड कर दूं, 1 ऐड करने पे यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -5, और यहाँ 6 में एक जोड़ा तो 7, तो k किसके बीच में लाई करेगा, -5 से 7 के बीच में। ये इनइक्वलिटी का फॉर्मेट होता है, जब भी मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन k हो, इट मीन्स k किसके बीच में लाई कर रहा है, -k से, मतलब k स्क्वायर -k से +k के बीच में। अगर ये ग्रेटर देन होता, मॉड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन k स्क्वायर, तो हम कहते हैं k x लाइज बिटवीन
माइनस इन्फिनिटी से माइनस के एंड प्लस के से इन्फिनिटी, ये हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं यूनियन में, अगर ग्रेटर देन होता है क्योंकि, बट यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पे सिंपल था कि वो -6 से +6 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो बढ़िया तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इसको राइट हैंड साइड में -2x² + 6x - 9, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड पैराबोला है ना, डाउनवर्ड की तरफ है। अब देखना है कि क्या ये ऐसा डाउनवर्ड है या फिर ऐसा डाउनवर्ड है, तो वो d पे डिपेंड करेगा, तो d निकाल लेते हैं। d क्या होता है? b² - 4ac। b² अगर देखें तो 6 का स्क्वायर 36 -4a -2 और c -9, तो ये आ गया 36 - 8 72 -36। d नेगेटिव है, d नेगेटिव है तो यानी ये वाला केस हो गया। ठीक है, ये वाला केस हो गया, तो ये जो है इस ग्राफ को टच ही नहीं कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, ये कहाँ की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ नहीं आ रहा, मतलब ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? दिस विल बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो -2x² + 6x - 9 इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये वैल्यू हमेशा, कुछ भी रखो x की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। जबकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, तो राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? पाई की पावर x। पाई का मतलब कितना होता है? पाई का मतलब 3.14 इसकी पावर x। बेस पॉजिटिव है, जब बेस पॉजिटिव है और उसकी कुछ भी पावर रखो तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ है, पॉजिटिव ग्राफ है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पाई टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी ही नहीं, तो क्या इसके कोई सॉल्यूशन होंगे? नहीं होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। क्लियर? इसका आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा ही पेचीदा सा सवाल है, इसमें हम थोड़ा सा रोल्स थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रोल्स थ्योरम है, तो यहाँ पे देखो an x की पावर n प्लस an - 1 x की n - 1 एंड सो ऑन a1 x इक्वल टू 0, जहां पर a1 0 नहीं हो सकता, n ग्रेटर देन 2 है, हैज पॉजिटिव रूट ऑफ x बराबर अल्फा, देन इक्वेशन दिस। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखो तो उन्होंने कुछ नहीं कर रखा, इसका डिफरेंशिएशन कर रखा है और उसे 0 के इक्वल कह रखा है, मतलब fx तो है ही 0 के इक्वल, साथ ही साथ f' भी जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं x बराबर अल्फा रखूं तो f अल्फा बराबर f' अल्फा और बराबर 0। ठीक है, अगर जब भी ऐसा होता है तो रोल थ्योरम ये कहता है कि जब भी आपका f' 0 होता है तो इसका मतलब है c जो है वो कहीं ना कहीं 0 से लेके उस जो रूट है उसके बीच में लाई कर रहा है, यानी रूट क्या है? अल्फा। तो c जो है हमेशा किससे कम होगा? अल्फा से तो कम ही होगा, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले रखी है। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज स्मॉलर देन अल्फा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है। इस ये थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल था बस, कि हमने देखा कि एक fx भी 0 कर रखा है और f' भी 0 कर रखा है और x बराबर क्या क्या रखा है? अल्फा। इट मीन्स f अल्फा बराबर f' अल्फा बराबर 0। इसका मतलब अल्फा क्या होगा? अल्फा उनके सेट ऑफ रूट्स के बीच में लाई करेगा, यानी कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से अल्फा के बीच में लाई करेगा। और साथ साथ ये भी बोला था कि इसके रूट्स कैसे पॉजिटिव हैं, तो एक तो अल्फा है, तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा होगा, तो हमने 0 ले लिया। ठीक है, तो जो वैल्यू है इसके c की, वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगी? 0 से अल्फा के बीच में लाई करेगी। सो स्मॉलर देन अल्फा। सो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स लाई बिटवीन 0 एंड 1। दोनों रूट्स जो है वो कहां से कहां के बीच में लाई कर रहे हैं? 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये किससे बड़े होंगे हमें ये बताना है। तो एक बार हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 1 - a² x² प्लस 2ax - 1 बराबर 0। अब इसका अगर हम d देखें तो d निकालने की कोशिश करो, b² यानी कि 4a² माइनस 4ac यानी 1 - a², c - 1 है तो प्लस, सो 4a² प्लस 4 माइनस 4a², कैंसल आउट। सो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई 4। ठीक, तो अब हम इसके रूट्स निकालते हैं। अगर d आ चुका है तो हम इसका x भी निकाल सकते हैं, है ना। तो x कैसे निकालेंगे? x निकालेंगे माइनस का b यानी माइनस का 2a
प्लस माइनस अंडर रूट टी यानी 4/2 1 माइनस ए स्क्वायर। तो x हमारे पास एक आ गया माइनस का 2a प्लस माइनस 2/2 1 माइनस ए स्क्वायर। 2 कॉमन लेके काट दो, माइनस का a प्लस माइनस 1/1 माइनस ए स्क्वायर। तो एक वैल्यू हो गई मेरे पास प्लस के लिए, यानी कि 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, और एक वैल्यू मेरे पास हो गई माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए। तो 1 ये 1 माइनस ए है, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल, 1 प्लस ए से 1 प्लस ए कैंसिल। तो x की वैल्यू हो गई 1/1 प्लस ए एंड माइनस का 1/1 माइनस ए, यानी कि इसको हम थोड़ा वैसे लिखना चाहें तो माइनस हटा दो तो 1/a माइनस 1। सो ये a प्लस 1/a प्लस 1 और ये वैल्यू क्या है 1/a माइनस 1। ठीक है, अब दोनों ही रूट, क्या बोला है इसने, दोनों ही रूट किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में। एक रूट तो ये रहा, एक रूट ये रहा, दोनों रूट अगर 1 इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा एक बार रफ कर लेते हैं, ऊपर वाला हिस्सा एक बार थोड़ा सा हटा लेते हैं ताकि हम थोड़ा सॉल्व कर पाए। ठीक, चलो, तो पहला है 1/a प्लस 1, ये किसके बीच में लाई कर रहा है सर, ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। और 1/a माइनस 1, ये भी किसके बीच में लाई कर रहा है सर, ये भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम पहला केस यहाँ पे देखें, इस वाले को अगर हम देखें कि 1/a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है ना, 1/a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 1 आ जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत। साथ ही साथ 1/a माइनस 1 लेस देन 1, इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करें, 1 को इधर ले आते हैं, 1/a माइनस 1 लेस देन 0, सो 1 माइनस ए प्लस 1/a माइनस 1 लेस देन 0। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, इसको मैं रफ ही कर देता हूँ, सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, ये हो गया 2 माइनस ए बाय ए माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a माइनस 2/a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एक 1 और एक 2, यहाँ से हम ऐसे आए प्लस माइनस प्लस, मतलब a जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, a बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, है ना, 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। और साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर, यानी कि थोड़ा और सही तरीके से लिखते हैं इसको, थोड़ा और सही तरीके से लिखने का क्या तरीका है कि a जो है वो 1 से कम हमें लेना है, 1 से कम या फिर 2 से ज़्यादा। और पहले वाले उससे क्या कह रहा था, a ग्रेटर देन 1, यहाँ क्या कह रहा है a लेस देन 1 और a ग्रेटर देन 2। ठीक, इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें 1/a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a क्या है ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट अगर हम सॉल्व करें 1/a प्लस 1 लेस देन 1, 1/a प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 0, सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस ए माइनस 1/a प्लस 1 लेस देन 0, a/a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, a/a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो अगर हम यहाँ पे फिर दोबारा एक नंबर लाइन बनाएं और -1 और 0 रखें, प्लस माइनस प्लस, सो यहाँ पर a लेस देन -1 और a ग्रेटर देन 0, a लेस देन -1 और a ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एक इक्वेशन आपकी बनी a ग्रेटर देन 2, मतलब एक बार बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, एक इक्वेशन क्या बनी, a ग्रेटर देन 2 a लेस देन 1। ठीक है, और एक इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन क्या बन रही है, a लेस देन -1 और a ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ बनाते हैं। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है -1 0 1 2। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं। पहले वाली कंडीशन देखो, a 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब इस तरफ भागेगा,
और a जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा है यानी इस तरफ भागेगा। दूसरे में क्या रहा है, a -1 से छोटा है, इस तरफ भाग रहा है, a 0 से बड़ा है, इस तरफ भाग रहा है, ठीक है। अब इनका अगर हम कंबाइंड पोजीशन देखें तो ये जो वैल्यू है हमेशा किससे बड़ी आएगी, ये वैल्यू हमेशा 2 से तो बड़ी आएगी क्योंकि ये हिस्सा कॉमन है, ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी आएगी। अगर ये कहता है किससे स्मॉलर है तो -1 से स्मॉलर आती, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ये हमेशा किससे बड़ी आएगी, 2 से बड़ी आएगी। क्लियर, थोड़ा बढ़िया सवाल था ये, जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि y बराबर px एक फंक्शन है, y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, इसका ग्राफ हमें यहाँ पे दे रखा है। हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल इमेजिनरी रूट्स ऑफ px, मतलब इसके 4 रूट बनेंगे, अगर तो इमेजिनरी कितने बनेंगे, या तो चारों इमेजिनरी हो जाए या फिर 2 इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में बनते हैं, तो या तो इसके 2 इमेजिनरी होंगे और 2 रियल, या फिर इसके चारों के चारों इमेजिनरी होंगे और कोई रियल नहीं होगा। अब अगर ग्राफ को देखें तो ये रियल एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब 2 रूट्स तो इसके रियल हैं, तो मतलब ये वाली कंडीशन हमारी बनेगी, और 2 इमेजिनरी हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसमें px में यानी y की वैल्यू हम यहाँ पे देखें तो y 0 है और x 1 है, तो रख लो y 0 रख लो, y 0 रखा और x को 1 रखोगे तो 1 प्लस b प्लस सी प्लस टी, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। और अगर ये वाली पॉइंट रखोगे 0,2 मतलब x को 0 और y को 2, तो y को 2 रख लो, x को 0 रखो, तो ये आ जाएगा x को 0 रखा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब कुल मिला के d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d को अगर यहाँ 2 रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा -3, a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, और बाई क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, 4 रूट्स है ना इसके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक में, माइनस का b बाय ए, सी बाय ए माइनस डी बाय ए, ई बाय ए, यानी कि d बाय 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 2, तो 2 आ गया, मतलब सभी प्रोडक्ट का रूट्स कितना है 2, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रियल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तो इसमें रियल प्रोडक्ट्स हैं इनटू इमेजिनरी प्रोडक्ट है, और ये कितना है 2, रियल प्रोडक्ट्स 2 के अगर बराबर है तो यहाँ पे 1 कर लूं, तो इमेजिनरी प्रोडक्ट्स किसके बराबर हो जाएंगे 1 के, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल इमेजिनरी रूट्स विल बी व्हाट, ऑप्शन ए दैट इज 1, ये रियल प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने ये जो डी की वैल्यू निकाली थी वो रियल वैल्यूज के तरीके पे, यानी रियल वैल्यूज को पुट करके हमने इसको निकाला था, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज 1। तो थोड़ा सा ट्रिकी था ये सवाल, अगर पेपर में आए तो इसको करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल पड़ सकता है, खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन पे आते हैं, लेट n बी प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स ऑफ x की 4 इतना इतना इतना, देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है x की 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 9999। मैं दोनों तरफ अगर 1 ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये x माइनस 1 की पावर 4 है ना, खोलना तुम, इससे तुम्हें दिखाई देगा, और ये कितना है, ये है 10,000, ठीक है, दिस इज 10,000। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 100 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100, या फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 100। अब माइनस का 100 का मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 100 आयोटा स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नॉन रियल रूट्स हमें चाहिए, मतलब यहाँ से तो रियल वैल्यूज आएंगी x की, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, ये केस हटा दो, यहाँ आयोटा है, यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस 1 मैंने स्क्वायर रूट फिर ले लिया, तो ये आ गया 10 आयोटा और प्लस माइनस, है ना, तो 2 वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू एक आ गई 1 प्लस 10 आयोटा
और x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 10 आयोटा। अब n क्या है, n जो है लेट n बी प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स, तो यानी कि इनका प्रोडक्ट n है, 1 प्लस 10 आयोटा इंटू 1 माइनस 10 आयोटा। तो a स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 100, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ गया 1 प्लस 100, यानी n कितना आ गया 101। अगर n 101 है तो n के सम ऑफ डिजिट्स को हमें बताना है, तो इनका सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है 2, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्लियर, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से देखना था। नॉन रियल रूट्स, इसके लिए मैंने एक एरो भी लगा रखा था हिंट के लिए, ताकि आप इसे देख सकें। 14th पे आते हैं। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x की 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो इसके कितने रियल रूट्स होंगे ये हमें देखना है। ठीक है, देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक फंक्शन मान लूँ fx, x की 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 30। अगर मैं इसका एफ डैश करने को बोलूँ तो क्या करोगे, 5x की 4, 9x स्क्वायर प्लस 4, 0। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका a तो पॉजिटिव है, इसकी अगर d की बात करें तो d क्या आ जाएगा 81 माइनस 4ac, 4 4 जा 16, 580, यानी d भी पॉजिटिव है। ठीक है, d भी पॉजिटिव है। तो ये जो एफ डैश एक्स है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सभी वैल्यूज के लिए, जब भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो सभी वैल्यूज के लिए, तो इसके कितने रियल रूट होते हैं, इसके 1 रियल रूट होते हैं। ये ध्यान रखना, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज ओनली 1 रियल रूट। क्योंकि खुद सोचो ना, यहाँ पे पावर 5 है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पांचों के पांचों रियल रूट, एक भी इमेजिनरी नहीं, या फिर 3 रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट, मतलब इमेजिनरी रूट पेयर में आते हैं तो 2 हो गए, या फिर 1 रियल रूट और 4 इमेजिनरी रूट। तो आंसर तो 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता। तो 1 3 5। अब हमने देख लिया एफ डैश एक्स को करके, एफ डैश एक्स को जैसे ही करके हमने देखा तो हमें पता चला कि इसका जो डी है, ठीक है, इसका जो डी है, यहाँ पर x की 4 था, तो इसका जो डी है हमारे पास ये हमेशा पॉजिटिव है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक चीज मैंने गड़बड़ बताई है, ये मेरे भी ध्यान में नहीं था। ये फॉर्मूला नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ सब पे पावर इवन है भाई, दिस ऑल इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये ऑटोमेटिक है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इवन पावर्स है ना, इन पावर्स नेगेटिव कैसे देंगे, सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब हमेशा पॉजिटिव आए तो इसका मतलब इसके एक रियल रूट है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। हमारे पास है 15th क्वेश्चन, 2 रूट्स ऑफ x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल बट सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, हमें ये बताया गया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि इसके जो रूट्स हैं, इसके 3 रूट बनेंगे, लिख लेते हैं एक बार, x की क्यूब, जस्ट अ मिनट, प्लस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके 3 रूट बनेंगे, अल्फा बीटा और गामा बनेंगे। आर रियल एंड अनइक्वल बट सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, 2 रूट्स, मतलब एक रूट अगर मैं r मानूं तो दूसरा क्या होगा -r, एब्सोल्यूट वैल्यू में तो सेम है लेकिन अनइक्वल है, और एक वैल्यू एक हम ले लेते हैं t। ठीक है, अब हम इसका अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें या सम ऑफ रूट्स करें, r माइनस r प्लस टी, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b बाय a यानी कि माइनस का 3, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। एक रूट तो आ गया, एक रूट तो आ गया सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर करें, r इंटू -3 दैट इज माइनस बी बाय ए सी बाय माइनस टी बाय यानी कि 12, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 3 से 4 पे कट गया, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं या फिर -2, जब मैं 2 लूंगा तो ये -2 हो जाएगा और ये -3 या फिर -2 2 और -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पूछा गया है k की वैल्यू आप हमें बता दो, तो k की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा उठा के रख दो, -3 रख दो, एक रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, या चलो 2 रख दो, तो कितना आएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 2k माइनस 12 बराबर 0, 12 से 12 कैंसिल, 2k बराबर -8, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई -4।
सो इसके आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज -4। सो ऑल द 15 क्वेश्चंस हैज बीन डन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो को आराम से दोबारा देख लेना, अगर कोई भी सवाल नहीं समझ में आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, हम और थोड़े से उसके साथ आ रहे हैं, ठीक है। मैं और बहुत सारे आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा, बने रहिए। क्लियर? सो आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। थैंक यू सो मच।